All right, good afternoon, students. Yesterday I told you that we will do exercise 14.1 of the textbook. Now this is on page number 270, statistics, exercise 14.1. Now I'll try and do the whole exercise today in one single sitting, one single video. Okay, it's very easy exercise. I told you there are three methods of finding the mean. This exercise is about the mean. Okay, we will do the shortcut method, or rather the direct method. Then we will do a zoom in method, and wherever required, the step deviation method. Alright, the first question says a survey was conducted. Now you see number of plants are shown out here. Okay, so number of plants, this is all there in the textbook. You can keep the textbook open. And number of plants from 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, okay, 10 to 12, and 12 to 14. Number of plants, this is, and the second column is about number of houses. Number of houses. That means it's your frequency, F, okay. These are class intervals. Number of plants, that is class intervals, okay. This is class. There is no need to write it, but it is class interval, and this is frequency. Number of houses, 1 to 1, 1 to 1, 5, 6, 2, 1 to 1, 5, 6, 2, and then 3. Alright, this is your total sigma Fi, or you can write n, it's the same thing. 2 and 1, 3 and 1, 4, 9 and 6, 15, 15 and 5, 20. Okay, now you want to find the mean number of plants, mean number of plants of houses. Okay, the question says find the mean number of plants per house. Per house, how many plants are there? Mean, average number of plants per house. This is number of plants. Alright, now you can do it by any of the three methods. It won't make any difference. You will still get the same answer. But which method is applicable when? Okay, for example, here you see the class intervals are very small. At the same time, the frequency is also very small. So when class interval and frequency, see I am writing here, class interval is small. Okay, classes are small. That means the numbers are small. And frequency, okay, frequency is also small. ओके, ये दोनों स्मॉल है, मतलब छोटे हैं, इतने बड़े बड़े नंबर्स नहीं है. देखो इसमें, ओके, इसमें भी बड़े नंबर्स नहीं है, क्लास इंटरवल्स में भी, और फ्रीक्वेंसी में भी बड़े नंबर्स नहीं है. तो तब हमको कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए? तब हमको डायरेक्ट मेथड यूज़ करना चाहिए, क्योंकि नंबर्स बहुत बड़े नहीं होंगे. सो इफ़ आई यूज़ नाउ, ओके, क्लास मार्क्स और मिड वैल्यूज़, उसको मिड वैल्यू में पसंद करता हूँ. आप क्लास मार्क भी लिखो, ओके, मिड वैल्यू लिखो, ओके, मिड वैल्यूज़, और you can write class marks. Okay, mid value is a better word because you can actually remember it easily. Okay, अब mid value को हम x कहते हैं. Okay, फिर इसके बाद हमको fx का कॉलम निकालना है, f into x का कॉलम. ऑलराइट, और इधर जो आएगा उसका टोटल आएगा, सिग्मा fx का टोटल. सिग्मा मतलब टोटल. ऑलराइट, ये जो सिग्मा का मीनिंग क्या होता है? दिस इज द वर्ड ग्रीक लेटर सिग्मा. सिग्मा मीन्स समेशन. समेशन मतलब टोटल. ओके, उसका सम, टोटल. ऑलराइट, मिड वैल्यूज देखो, अब x इसकी मिड वैल्यूज निकालेंगे. तो मिड वैल्यू 0 to 2, 0 plus 2 डिवाइड बाई 2. ओके, 2 plus 4, 6, 6 डिवाइड बाई 2, 3. अब ये दो क्लास इंटरवल्स है. ओके, सो 2 से बढ़ जाएगा. 1 plus 2, 3, 3 plus 2, 5, 5 plus 2, 7, 7 plus 2, 9, 9 plus 2, 11, 11 plus 3, okay, 11 plus 3, just once again, okay, इसके बीच में 3, इसके बीच में 5, इस 7, इसके बीच में 9, इसके बीच में 11, और इसके बीच में 13. आया समझ में? दो का डिफरेंस था, इसलिए दो ऐड कर दिया. राइट, नाउ ये मिड वैल्यूज आ गया. मिड वैल्यूज आने के बाद what we do is multiply f into x, frequency into this. 1 1s are 1, all right, 2 into 3 6, okay, 5 1s are 5, 5 7s are 35,
6 9s are 54, all right, 2 11s are 22, 13 3s are 39, all right. So you can see now the formula would be x bar is equal to sigma fi xi. ये fi xi है, i लिखने की ज़रूरत नहीं, मैंने पहले भी बोला है, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi. सिग्मा f लिखो तो भी चलेगा, राइट, n लिखो तो भी इट्स द सेम थिंग, अपॉन सिग्मा fi कितना है 20, ओके. अब इसका टोटल 6 + 1 7, 7 + 5, ओके, 35 + 5 40, 46 47, ये 47 है, ओके. 50 60 70 76 and 2 78, okay. 50 20 70 74 and 2 sorry, this is 34 40 40 47 है, 50 and 20 70 74 76, okay. ये 76 है, 50 20 70 76 and then 39. Just be careful with the totaling, okay. 9 and 6 15 and 7 22, okay. 6 and 10 16 162. So इसका टोटल 162 आता है. 162 डिवाइड बाय दिस वुड बी 16.2 डिवाइड बाय 2, that is 8.1 plants. Why plants? Because ये इधर plants है, okay. So therefore the mean number of plants per house is 8.1 plants. This is the question, all right, once again. So you can see this, that it is not at all difficult at all. Look at the mean number of plants per house, okay. So basically what you have to do is find out which method is applicable. If these numbers are small, the class intervals are also small and the frequency is also small, then you can do it by the direct method. This is the direct method, sigma fi xi upon sigma fi. Why this is easier? Because the numbers are small. Otherwise this column fx का कॉलम है ना बहुत बड़ा हो जाएगा, बड़े बड़े नंबर्स आएंगे. इधर देखो काफ़ी बड़े नंबर्स तो थे, बट लेकिन अगर ये बहुत बड़े होते हैं तो x बार की वैल्यू, ये जो x है ना मिड वैल्यू, वो भी काफ़ी बड़ा होता है, तो ये भी बहुत बड़ा हो जाएगा. इसलिए जब नंबर्स बड़े होते हैं तो ये डायरेक्ट मेथड नहीं करना चाहिए. दिस इज़ योर डायरेक्ट मेथड, ओके. दिस इज़ डायरेक्ट मेथड. हमने डायरेक्ट मेथड से किया, ओके. डायरेक्ट मेथड से इसलिए किया कि बिकॉज द नंबर्स वर स्मॉल. ऑलराइट, नाउ लेट अस डू द सेकंड क्वेश्चन. अगेन we will do in the same way. First of all we will examine which method to do it by, and then we will do it, okay. The second question says, consider the following distribution of daily wage of 50 workers of a factory, okay. So ये daily wage है. डेली वेज मतलब रोज का मजदूरी जो पैसा मिलता है इन रुपीस, ओके. डेली वेज इन रुपीस एंड दैट इज okay. Daily wage 500 to 520, 500 to 520, then 520 to 540, 520 to 540, then 540 to 560, then 560 to 580, 580 to 600, and then 580 to 600 तक ये, ओके. और यहाँ पे हम उसका टोटल करेंगे. ऑलराइट, फिर दिया है नंबर ऑफ वर्कर्स. ये नंबर ऑफ वर्कर्स, ये नंबर ऑफ वर्कर्स क्या होता है? ये फ्रीक्वेंसी है. नंबर ऑफ वर्कर्स ये फ्रीक्वेंसी है f, ओके. ये फ्रीक्वेंसी 12 14 8, 12 14 8, 6 and 10, 6 and 10. ये सिग्मा fi, इसका टोटल 12 26 10 20 24 26 26 and 6 32, ओके. 32 and 40 and 50, ये इसका टोटल 50 आता है. यू डोंट हैव टू डू इट मेंटली, बाजू में रफ में भी कर सकते हो टोटल, ओके. नाउ अब कौन सा मेथड यूज़ करेंगे वो लेट अस फाइंड आउट. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस. मैंने पिछले प्रॉब्लम में क्या बोला था? अगर नंबर्स छोटे हैं तो डायरेक्ट मेथड यूज़ करो. इधर देखो, अगर मैं मिड वैल्यूज़ निकालता हूँ, ओके. मिड वैल्यूज़ आता तो क्लास मार्क. देखो इस बार मैं क्लास मार्क लिखता हूँ, ओके. दोज हु प्रीफर क्लास मार्क लिखो. क्लास मार्क क्या होता है? एक्स है.
ओके अब मैं क्लास मार लेता हूँ तो मिड वैल्यूज 500 और 520 का मिड वैल्यू आएगा 510। ओके ये 5 अब ये 20 का डिफरेंस है तो 20 ऐड करो 530, देन 20 ऐड करो 550, 20 ऐड करो 570, 20 ऐड करो 590। ओके ये मिड वैल्यूज देखो x की वैल्यू काफ़ी लार्ज है। अब मैं f और x को अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। ओके इसीलिए इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इट इज़ जब बहुत नंबर्स बड़े होते हैं ना, नंबर्स आर बिग। ओके सो व्हाट मेथड वी यूज़, इट इज़ बेटर टू यूज़ द either assuming method which is okay fine, but at the same time the easier method, छोटे नंबर और भी हो जाएंगे, वो है the other method, step deviation method। तो हम step deviation method इधर प्रीफर करेंगे। ओके नाउ स्टेप डेविएशन के लिए मुझे UI चाहिए। ओके UI क्या है, x माइनस a अपॉन h। ओके x माइनस a अपॉन h। देखो h की वैल्यू लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, h मतलब लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल 20-20 का है। ओके अगर मैं a की वैल्यू कहीं से भी ले सकता हूँ x में से, मान लो कि मैं ये लेता हूँ तो इधर उसको सर्कल ब्लॉक में रखो और इधर a लिख दो और इधर भी लिखो a इज इक्वल टू 550, ये मैंने लिख दिया। ओके 550। अब मैं देखो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करूँगा, a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi जो इधर है इनटू h, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल तो 20 आ गया। अब मान लो कि मैंने a लिया है 550 लिया है, सिग्मा fi हम निकालेंगे, सिग्मा fi तो 50 है और लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल 20 है। अब सिग्मा fi ui हमको चाहिए तो पहले ui निकालेंगे, तो ui देखो कैसे आएगा, ये हमने 550 लिया है। ओके तो ये क्या है, ui इज इक्वल टू x माइनस a अपॉन h। ओके तो x की वैल्यू, सबसे पहले x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 510 है, 510 माइनस a की वैल्यू 550 अपॉन h की वैल्यू कितनी है 20। ओके 510 माइनस 550 तो कितना होगा -40 और उसको 20 से डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा। आया समझ में, तो ये आएगा -2। अब मैंने ये क्या बोला था कि ये इसको डिक्रीज करो, जो a है उसके सामने 0 लिख दो, -1 -2, ये 1 and 2 ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके ये जो a लिया है उसके सामने 0 ही आएगा, ऊपर नेगेटिव आएगा नीचे पॉजिटिव आएगा। और इधर देखो ये -2 है तो ये -1 1 और 2 बहुत ईजी है। ऑलराइट ये ui हो गया। अब fi ui का कॉलम ले लेते हैं। ओके fi ui का कॉलम ये आ जाएगा। अभी देखो fi ui मतलब फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई दिस, 12 माइनस 12 इंटू 2 -24, 14 इंटू 1 -14, 8 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, 10 इंटू 2 20। अब देखो अगर हमने डायरेक्ट मेथड किया होता तो कितने बड़े बड़े नंबर्स आते, लेकिन ये UI मेथड, UI मतलब स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ किया है, सो इट बिकम्स ईजी। वी आर यूजिंग विच मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ओके ये स्टेप डेविएशन मेथड वी आर यूजिंग। बट व्हाई आर वी यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, बिकॉज द वैल्यूज ऑफ x एंड बिकॉज द वैल्यू x की वैल्यू बड़ी कब हो सकती है, जब ये क्लास इंटरवल्स बड़े हैं। सो क्लास इंटरवल्स बड़े हैं, फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी बड़ी है, सो इसलिए स्टेप डेविएशन बेटर है। ऑलराइट अभी fi ui का टोटल करेंगे तो पहले ये नेगेटिव का टोटल कर लेते हैं, 20 30 38 है, इनका टोटल करते हैं तो 26 है। अब इधर देखो 38 में से 26 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बचेगा 12। ओके लेकिन पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा, 38 है बड़ा, उसकी साइन कौन सी है, सो -12। सो इधर हम लिखेंगे सिग्मा fi ui इज इक्वल टू -12। नाउ यू अंडरस्टूड दिस, सो नाउ ऑल यू हैव टू सब्स्टिट्यूट इज हियर -12 को सब्स्टिट्यूट करो। ओके दिस इज -12, सो आई गेट 550। अब ये माइनस साइन था, ओके ये 0 0 कैंसिल हो गया, सो -12 इंटू 2 ओके अपॉन 5। ओके ये 0 मैंने कैंसिल कर दिया, माइनस साइन ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, बी केयरफुल हियर। ओके 12 2 ज़ा 24, 550 -24 अपॉन 5 दैट इज 550 माइनस ओके 5 4 ज़ा 20, 40 5 8 ज़ा 40। अब इसमें से -5 करेंगे तो 545 हो जाएगा, माइनस करेंगे 5 तो 545.2।
ऑलराइट. सो 545.2 अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स लिखना है तो 20 लिखो. ओके, देयर इज नो पॉइंट, इसमें कोई इतनी कोई गड़बड़ नहीं है, इसमें कोई तकलीफ वाली चीज़ नहीं है. एंड देन इसके बाद इधर एक सेंटेंस लिख सकते हैं, फाइंड द मीन डेली वेज ऑफ द वर्कर्स. देयरफॉर द मीन डेली वेज of the workers is rupees 545 rupees and 20 पैसे. ओके, आ गया. सो यू कैन सी इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट एट ऑल. हमको डिसाइड करना है कौन सा मेथड यूज करेंगे. ऑलराइट, देयर यू गो. नाउ लेट अस डू द थर्ड प्रॉब्लम. ऑलराइट, थर्ड वन. Okay, the following distribution shows the daily pocket allowance. All right, so I'll write down daily pocket allowance. Daily pocket allowance मतलब पॉकेट मनी. अलाउंस मतलब ये पॉकेट मनी है और वो भी रुपीज़ में है, इन रुपीज़. ऑब्वियसली वो रुपीज़ में होगी कि मार्बल्स में तो नहीं हो सकती है. ऑलराइट, डेली पॉकेट अलाउंस. और उसके बाद है नंबर ऑफ चिल्ड्रन. ओके, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन. ऑलराइट, ये ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी है. दिस इज एफ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेली पॉकेट अलाउंस 11 to 13. ऑलराइट, 13 to 15, then 15 to 17, 17 to 19, okay, 19 to 21, 21 to 23 and 23 to 25. ये शायद पुराने ज़माने का होगा. 25 रुपये में आजकल कुछ नहीं आता ज़्यादा. ओके, बट एनी वे दिस इज द डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीज़. ओके, एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन, उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल. फ्रीक्वेंसी दिया है 769, 7, 6, 9, 13 F. ओके, एंड 5 and 4. Okay, here N sigma Fi. Sigma Fi हमको दिया है क्वेश्चन में. द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ लोकेलिटी. द मीन पॉकेट अलाउंस इज रुपीज़ 18. फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी. अब इसमें हमको दे दिया है कि मीन पॉकेट अलाउंस इज रुपीज़ 18. ये हमको पहले से ही दिया है, इसलिए हमको मीन नहीं निकालना है, हमको तो इसका मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ निकालना है. Okay, so therefore what we are going to do is, see, numbers are not very big. Okay, हम numbers big बड़े नहीं है तो हम कोई भी मेथड ले सकते हैं. बट एट द सेम टाइम द numbers are not very small also. हम कोई भी मेथड से करेंगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी. अब इसमें मान लो कि हम अज्यूम मीन मेथड से करते हैं. सो व्हाट डू वी गेट? अज्यूम मीन मेथड के लिए पहले क्लास मार्क तो निकालना ही पड़ेगा. ओके, सो क्लास मार्क मतलब x. कोई भी मेथड से करो क्लास मार्क तो निकालना ही पड़ता है. ओके, 11, 12 एंड 13. सो दिस वुड बी 12 और दिस वुड बी 14, दिस वुड बी 16. अब दो का डिफरेंस है. ओके, 18, देन दिस वुड बी 20, देन दिस वुड बी 22 एंड दिस वुड बी 24. और दो का डिफरेंस है. इधर भी देख सकते हो तो दो का डिफरेंस है. h की वैल्यू 2 है. ओके, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल 2 है. नाउ इसमें देख सकते हो कि जो f है ना मिसिंग फ्रीक्वेंसी, उसके सामने ये जो 20 है इसको a ले लो. बोले ऑलवेज फॉलो दिस रूल, इसको a ले लो. जहाँ पे f है मिसिंग फ्रीक्वेंसी. ओके, मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सामने जो x है उसको a ले लो. तो इधर हम जो a की वैल्यू लेंगे वो 20 लेंगे. ओके, h की वैल्यू कितनी है? h की वैल्यू तो 11, 12 दैट मीन्स 2 है. 13 इसमें आता है. 11 to 13 इसमें नहीं गिना जाता है. 13 नेक्स्ट क्लास में गिना जाता है. इसलिए लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल 2 है, लेकिन हमको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ओके, अगर ज़रूरत पड़े तो h इज इक्वल टू 2. अभी देखो क्लास मार्क्स आ गया. अब उसके बाद हमको d निकालना है. di डेविएशन कैसे निकलता है? x माइनस a निकलता है. ओके, ये x माइनस a आ जाता है. उसके बाद हम FI/DI का कॉलम निकालेंगे. ओके, FI/DI का कॉलम. ऑलराइट, और इधर हम सिग्मा FI/DI उसका टोटल निकालेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉर्मूला सिग्मा FI/DI वाला फॉर्मूला में कौन सा है? दिस इज योर अज्यूम मीन मेथड. A प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI.
ये मेथड है. दिस इज विच मेथड? दिस इज द अज्यूम्ड मीन मेथड. अज्यूम्ड मीन मेथड. ये अज्यूम स्टेप डेविएशन मेथड नहीं, अज्यूम मीन मेथड से करते हैं. वैसे स्टेप डेविएशन में ए को क्या बोलते हैं? अज्यूम मीन ही बोलते हैं. ये ए है, वो अज्यूम मीन ही है, दोनों में. ऑलराइट, सो नाउ हमको एक्स बार की वैल्यू पहले से दे दिया है, 18 दिया है. ओके, ए की वैल्यू हमने 20 लिया है. तो सिग्मा एफ आई डी है, हमको अभी मालूम नहीं है. सिग्मा एफ आई देखो, इसका टोटल 7 and 6. ओके, 6 and 9 15, 15 20 25. दिस इज 6 and 9 15, 15 and 7 22, 22 32 and 35 40, 40 and 4 44 प्लस एफ. इसको बराबर ध्यान दो. अगेन 7 and 6 13, 13 and 9 22, 32 and 3 35 40, 44 प्लस एफ. ओके, 44 प्लस एफ. एफ को मत भूल जाना. ऑलराइट, नाउ अभी देखो डी आई मतलब क्या है? 12 minus 20. 12 minus 20 -8 होगा. ओके, -8. 14 minus 20, so -6. ओके, 16 minus 20 -4. 18 minus 20 -2. 20 minus 20, ये तो 0. जहाँ पे ए लेते हैं उसके सामने 0 जाएगा. फिर ये 2 है और ये 4 है. ऑलराइट, नाउ ये डी आई है, एफ आई डी आई. एफ इधर है, 7 8 जा -56. ओके, 6 6 जा -36. ऑलराइट, 9 4 जा 36. ओके, 9 4 जा 36, 6 6 जा 36, 7 8 जा 56. नाउ 13 into 2, 13 2 जा -26. और f इंटू 0, ये इसीलिए इधर मैंने बोला था कि f के सामने a ले लो. तो f इंटू 0, क्योंकि अगर इधर हम a लेते हैं तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा. तो 0 इंटू f 0 हो जाएगा. देन 5 इंटू 2 10. ओके, एंड देन 4 4 जा 16. अंडरस्टूड दिस? देखो, हम f के सामने a क्यों लिया? क्योंकि अगर इधर a लेते हैं तो इधर भी 0 हो जाएगा. अगर फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर 0 आएगा, वरना f की वैल्यू इधर भी आ जाएगी. ऑलराइट, अब इसको माइनस वैल्यू इसको ऐड करो. देखो 6 6 6 6 4 जा 24, 5 24 5 and 3 3 and 2 5 and 5 10 13 into 15 154. ओके, ये -154 है. और ये इसको ऐड करो, ये प्लस 26 है. ओके, सो 154, उसमें से 26 को माइनस करो. ओके, 10 4 14, 6 and 8 14, 4 minus 2 is 2, 128. अब ये 128 आ गया, लेकिन ये माइनस साइन बड़ी है, इसलिए हम -128 लिखेंगे. -128. तो ये -128 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है? 20. ऑलराइट, सो नाउ देखो 18 minus 20, 18 minus 20 इधर is equal to -128 upon 20. Okay, so 18 minus 20 is -2, -128 upon 20. Okay, now 22s are 40, -40. Okay, इधर there is a mistake here. Sigma fi इधर मैंने गलत कर दिया है. सिग्मा एफ आई इज 44 प्लस एफ है. ओके, इधर मैं फिर से करता हूँ इधर. ओके, फिर से ये देखो 18 minus 20 क्या होगा? -2 इज इक्वल टू -128 अपॉन 44 प्लस एफ. ओके, 20 नहीं था, गलती से लास्ट प्रॉब्लम का याद आ गया. 44 अपॉन एफ प्लस 44 अपॉन एफ है. नाउ -2 को इससे मल्टीप्लाई करो. -2 44 प्लस एफ इज इक्वल टू -128. दोनों तरफ से माइनस साइन निकाल दो. ओके, माइनस साइन निकाल देते हैं, या तो 2 से डिवाइड करो. ये 44 प्लस एफ, 128 को 2 से डिवाइड करो, तो दैट विल बी 2 6 जा 12, ये 64 हो जाएगा. सो एफ की वैल्यू आएगी 64 -44. सो एफ की वैल्यू आएगी 20. इसलिए ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी 20. अब ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी आया ना, इसमें ध्यान रखो एक बात का कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी कभी भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है, ओके, मिसिंग फ्रीक्वेंसी कभी भी इट शुड नेवर बी इन डेसिमल्स. डेसिमल में नहीं होगा. ओके, ये डेसिमल में कभी नहीं होगा. दैट मीन्स फ्रैक्शन में कभी नहीं होगा. डेसिमल फ्रैक्शंस में वो कभी नहीं होगा. इट वुड नेवर बी इन डेसिमल फ्रैक्शंस एंड इट वुड नॉट बी नेगेटिव. ये नेगेटिव भी नहीं होगा.
अगर तुम्हारा नेगेटिव आ रहा है, अगर नेगेटिव आ रहा है या तो डेसिमल आ रहा है या फ्रैक्शन आ रहा है ना, इसका मतलब है तुम्हें कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ किया। देखो इधर गड़बड़ किया था ना, इसलिए अगर इसको सॉल्व करता तो वो नेगेटिव आता है तो फ्रैक्शन आ जाता। नेगेटिव तो नहीं आता क्योंकि दोनों तरफ से कैंसिल हो जाता, लेकिन फ्रैक्शन में आता। ओके, बिकॉज देयर वाज अ मिस्टेक। ओके, यू कैन एट वंस यू कैन कम टू नो दैट इसमें कुछ गड़बड़ है। ओके, अभी देखो फिर से कहता हूँ, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आ सकता है और हर बार आता है, लेकिन सिंगल मिसिंग, ये इसमें सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला भी आ सकता है। ओके, सो बी केयरफुल विद दिस प्रॉब्लम। ऑलराइट, नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 अगेन वी मस्ट फर्स्ट डिसाइड विच मेथड टू डू। ऑलराइट, विच मेथड शुड वी फॉलो। सो क्वेश्चन नंबर 4, ऑलराइट, व्हाट डज इट 30 women, number of heartbeats per minute, number of heartbeats per minute. Okay, number of heartbeats per minute or number of women, number of women, ये फ्रीक्वेंसी आएगा। ओके, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट 65 to 68, फिर 68 to 71, then 71 to 74, then 74 to 77, then 77 to 80, 80 to 83, and then 83 to 86. Okay, and number of women दिया है हमको, number of women दिया है 243, 243, 874, 8 7 4 और 2। ओके, सिग्मा एफ आई 30 वीमेन, तो ये 30 आएगा ऑब्वियसली, क्वेश्चन में दिया है 30 वीमेन, 4 and 2 6 and 3 9 8 17 17 and 4 28 and 29 30, सो 30 आ जाएगा। ये है यहाँ पे हम टोटल। स्टैटिस्टिक्स में टेबल अच्छी तरह से बनाना जरूरी है, यूज अ पेंसिल एंड स्केल टू मेक द टेबल। ऑलराइट, नाउ वी वांट टू फाइंड, ओके, find the mean heartbeat per minute for these movements by using a proper method. Okay, so now if you look at it carefully, frequency कम है, frequency के numbers बहुत single digit में है। okay, लेकिन ये क्लास इंटरवल्स काफ़ी बड़े हैं, तो अगर हम है शॉर्टकट मेथड या तो डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे तो इसका जो मिड वैल्यू बहुत बड़ा आएगा। देखो पहले मिड वैल्यू जाता हूँ, क्लास मार्क निकाल देता हूँ। देखो ये क्लास मार्क मतलब x की वैल्यू। ओके, पहले हम x की वैल्यू तो चाहिए, कोई भी मेथड से करो क्लास मार्क तो चाहिए, तो हम क्लास मार्क 65 + 68, ओके, 60 and 60 128 and 133, 133 ये 133 है, 133 को 2 से डिवाइड करो। ओके, 2 6 are 12, 2 6 are 12 and 113 2 5 है 66.5। ओके, ये 66.5। अब डिफरेंस कितना है, 65 to 8 68, 65 66 67 3 का है, तो हम इसको 3 ऐड करेंगे तो ये 69 + 69.5। अब इसमें 3 ऐड करो तो 72.5, अब इसमें 3 ऐड करो 75.5, अब इसमें फिर से 3 ऐड करो 78.5, इसमें 3 ऐड करो 78 के बाद 3 और ऐड करो 81.5, अब फिर से ऐड करो 84.5। देखो कितना स्पीड से हो जाता है। क्यों मैंने 3 ऐड किया, क्योंकि इसका डिफरेंस 3 है, तो इधर भी 3 डिफरेंस आएगा। ओके, तो पहले वाला निकाल दिया, उसके बाद थी, लेकिन इधर अच्छी तरह से देख लेना का भाई बिल्कुल बराबर है कि नहीं, इक्वल क्लासेस है कि नहीं। अगर इक्वल क्लास नहीं है तो ये गलती मत करना, ये इक्वल क्लासेस है इसलिए हो सकता है, ये अगर क्लास लेंथ इक्वल नहीं है तो ये नहीं हो सकता है। ऑलराइट, यू विल बी केयरफुल। नाउ यू कैन सी द क्लास मार्क्स x की वैल्यू काफ़ी हाई है। ये डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़े नंबर आएंगे, डेसिमल में आएगा। तो अगर हम स्टेप डेविएशन करते हैं तो भी ठीक है, और अज्यूम मीन करते हैं तो भी ठीक है। फ्रीक्वेंसी छोटी है तो अज्यूम मीन मेथड यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम पहले डी निकालेंगे, DI = x - a। ओके, और उसके बाद FIDI। ओके, सो देन वी विल यूज़ द फॉर्मूला x bar = a + सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI। ओके, ना बी केयरफुल, यू कैन इवन यूज स्टेप डेविएशन मेथड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब DI देखो XI - a 66.5, इसमें से कोई भी हम ले सकते हैं। सपोज a की वैल्यू मैं 75.5 लेता हूँ, ये ओके, a लेते हैं हम,
तो 75.5 माइनस 70 ये तो जीरो जाएगा, नीचे पॉजिटिव आएगा, ऊपर नेगेटिव आएगा। 66.5 देखो 66.5 माइनस 75.5, ऑलराइट। सो 66.5 66 एंड 9 75 9 आ जाएगा। ओके 66 प्लस 9 75, तो 9 आएगा माइनस 9, ये माइनस 9, ऑलराइट। अब उसके बीच में डिफरेंस कितना है 3 का, तो 3 का डिफरेंस ले लो। ओके ये 3 का डिफरेंस 3 6 एंड 9, और इधर भी 3 6 एंड 9, ऑलराइट। सिग्मा एफ आई डी आई अभी देखो एफ इंटू डी 9 2 ज़ा 18, ओके 4 6 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9, 8 0 ज़ा 0, 7 3 ज़ा 21, 4 6 ज़ा 24, 4 9 2 ज़ा 18, ऑलराइट। इधर हमको सिग्मा एफ आई डी आएगा, एफ आई डी आई। पहले नेगेटिव का टोटल कर दो। ओके 20 38 एंड 42 एंड 9 51, ये माइनस 51 है, इसका टोटल कर दो। ओके 20 40 50 58 62 63, ये प्लस 63 है। ओके सो दोनों का डिफरेंस कितना है 12 का डिफरेंस है, लेकिन पॉजिटिव डिफरेंस है इसलिए ये प्लस 12 होगा। प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये प्लस 12 होगा। नाउ पुट द वैल्यूज। ए को हमने कितना लिया था 75.5 लिया था। सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया 12 आया, और सिग्मा एफ आई कितना है 30 है। तो 75.5 प्लस 1.2 डिवाइड बाई 3, ओके 75.5 1.2 डिवाइड बाई 3 3 4 ज़ा 12, तो 75.9। यू कैन सी यू गेट 75.9, ऑलराइट। जो पूछा था नंबर इधर लिख सकते हो, देयरफॉर मीन नंबर of heartbeats per woman is 75.9 beats। वैसे हमको मालूम है कि एवरेज नंबर 72 होता है, 72 बीट्स पर मिनट होता है। ओके 72 बीट्स पर मिनट। ऑलराइट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। ऑलराइट, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 says, in a retail market, fruit vendors are selling number of mangoes. Number of mangoes. And number of boxes. Number of boxes. ये number of boxes है, उसको हम frequency लेंगे. Alright? And number of mangoes कितनी है 50 to 52. Alright, then 53 to 55, 53 to 55, 56 to 58, 58 to 59 to 61, then 62 to 62 to 64. Alright, and this is your total. And then after that, number of boxes 15. Then we have got 110, then we got 135 boxes, then 115 boxes, then 25 boxes. Alright. Now you can see here that the number of mangoes and the number of boxes, okay, if you see that the numbers are quite high. Okay, अगर इसका हम मिड वैल्यू निकालते हैं ना, क्लास मार्क, मिड वैल्यू मतलब क्लास मार्क। अगर हम क्लास मार्क निकालते हैं x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू निकालते हैं तो देखो काफ़ी हाई होता है। देखो ओके ये सिग्मा एफ आई होगा। क्वेश्चन में दिया है इन फ्रूट वेंडर्स मैंगोज दीज बॉक्सेस। ओके लेट्स फाइंड आउट द बॉक्सेस। ओके टोटल कितना है, यू कैन सी दैट 5 10 15 20, 2 and 1 3 and 1 4 and 3 7, 7 and 3 10, 1 and 1 sorry 1 2 3 4 5 6 600. Okay, so this is 600. The numbers are quite big. So इसका अगर 50 देखो 50 plus 52 is 102. 102 को डिवाइड करो 2 से तो 51 आएगा। ओके 53 इसका डिफरेंस कितना है 50 51 और 52 तीनों 3 का गिनने का। 53 54 55 3 का है, तो इसको 3 ऐड करेंगे तो ये 54 हो जाएगा।
3 ऐड करेंगे ओके तो 57 हो जाएगा, 3 ऐड करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, और 3 ऐड करेंगे तो 63 हो जाएगा। बहुत इजी है ओके मिड वैल्यूज़। लेकिन मिड वैल्यूज़ भी बहुत बड़े हैं। अगर मिड वैल्यूज़ बड़े हैं तो एंड फ्रीक्वेंसी भी बहुत बड़ी है, तो स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करना चाहिए। इसलिए हम इधर स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करेंगे। द वैल्यूज़ आर वेरी हाई, सो लेट्स यूज़ स्टेप डेविएशन मेथड। ऑलराइट, स्टेप डेविएशन मेथड के लिए हमको UI चाहिए। UI क्या है? UI इज x माइनस a अपॉन h। ओके, सो हम इधर a की वैल्यू अज्यूम मीन, लेट अस से अज्यूम मीन इज 57। ये अज्यूम मीन को बीच में से a लेते हैं तो 57 ओके, और h की वैल्यू 3 है। लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल 3 का है। ओके, नाउ व्हाट फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज? a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू एच। ओके, इधर इसमें h मत भूलना ओके, उसमें h नहीं आता, इसमें इधर h आता है। ऑलराइट, अभी a जो लिया उसके सामने 0 लिख दो। ओके, नाउ इधर एक्चुअली ये तो है ना 1 और 2 इसी तरह से लिख सकते हो डायरेक्टली। देखो मैंने कुछ नहीं किया, अब fi ui लिख देता हूँ। देखो fi ui डायरेक्टली लिख सकता हूँ मैं fi ui। fi अभी यकीन नहीं आता तो एक बार करते हैं, देखो 2 आता है कि नहीं। देखो 51 माइनस 57, 51 माइनस 57 अपॉन क्लास इंटरवल का लेंथ कितना है 3। 51 माइनस 57 कितना होगा? -6 अपॉन 3 कितना होगा? -2। इसलिए ये -2 -1 और +1 2। ओके, सो ऊपर का माइनस नीचे का प्लस, और यू कैन सी डायरेक्टली लिख सकते हो, बहुत ईजी हो जाए। इसलिए ये मेथड रियली शॉर्टकट तो ये है। ओके, नाउ 15 f इंटू UI fi ui, 15 2 ज़ा 30। ओके, 110 इंटू 1 110। ऑलराइट, 135 इंटू 0, देखो ये 0 आ जाता है। देन 115 इंटू 1 115। ऑलराइट, 25 इंटू 2 50। ओके, इसको ऐड करो नेगेटिव नंबर्स को, 140, ये 140 है नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करो तो 165 आ जाता है। ओके, दोनों के बीच में डिफरेंस 25 आया क्या, लेकिन बड़ा नंबर ये है, तो ये सिग्मा fi ui कितना होगा? दोनों के बीच में डिफरेंस 25 है, 25 का डिफरेंस। ओके, 40 प्लस 25। सो नाउ यू पुट द वैल्यूज। a की वैल्यू हमने 57 लिया था, सिग्मा fi ui कितना आया? 25 आया। सिग्मा fi कितना था? 600 था। एंड इधर h की वैल्यू 300 है। सो 57 प्लस ओके 25, 3 2 ज़ा 200, 25 1 ज़ा 25, 1/8 आएगा इधर, 1/8। 57 प्लस 1/8 मीन्स 0.8 1 ज़ा 8, 2 लेफ्ट 20, 8 2 ज़ा 16, 4 लेफ्ट 0.125। सो 57.125। Okay, and you can write one question, you can write it out here. Therefore this is the mean number of boxes of mangoes would be 57.125. Okay, remember one thing that 2 decimal point तक लिखो तो भी चलेगा, बहुत ज़रूरी नहीं है कि 3 डेसिमल, लेकिन इधर एग्जैक्ट आ जाता है इसलिए लिख दिया। और दूसरा एक और बात है कि अगर दूसरी मेथड से, अज्यूम मीन मेथड से करो तो डेसिमल पॉइंट में फ़र्क आ सकता है। ओके, अगर अज्यूम मीन मेथड से करो तो, और अगर डायरेक्ट मेथड से करो तो भी थोड़ा सा फ़र्क, लेकिन वो फ़र्क आएगा जनरली डेसिमल पॉइंट में आएगा। ऑलराइट, सो दैट वाज नंबर 5। नंबर 6 देखो अभी, लेट्स डू नंबर 6। ओके, आई एम कीपिंग एन आई ऑन द टाइम ऑल्सो, आई डोंट वांट द वीडियोज टू बिकम टू लॉन्ग। ऑलराइट, नंबर 6, द टेबल शोज डेली एक्सपेंडिचर ऑफ 25 फूड आइटम्स। ऑलराइट, सो डेली expenditure, okay, in daily expenditure in rupees, all right, and number of households, मतलब घर, कितने घर का कितना एक्सपेंडिचर है। डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीज 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350. All right, this is total. All right, number of households दिया है 4 5 12, 4 5
12 2 2 2 2 sigma fi 4 and 5 9 12 and 9 21 and 4 25 ये 25 क्वेश्चन में दिया भी है 25 हाउस होल्ड्स सो एन की वैल्यू 25 ही होगी। नाउ क्लास मार्क्स निकालेंगे। क्लास मार्क्स एक्स की वैल्यू निकालते हैं 100 to 150 तो क्लास मार्क्स तो 125 बीच में होगा। अब 50-50 का डिफरेंस है, देखो 50-50 का, तो 50 ऐड करते जाओ 175 225 275 ओके एंड देन फाइनली 325। देखो कितना फटाफट हो जाता है। ओके इसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट भी करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट वन में ध्यान रखना और ये ध्यान रहना कि ये सब रेगुलर है कि नहीं। ओके इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, अगर गड़बड़ है तो फिर इधर भी गड़बड़ हो जाएगी। अब उसके बाद हम डिसाइड करेंगे भाई नंबर्स बड़े हैं। ओके अगर नंबर्स बड़े बड़े हैं तो FIUI मेथड मतलब स्टेप डेविएशन मेथड, वी विल यूज स्टेप डेविएशन मेथड। ओके स्टेप डेविएशन मेथड हम यूज़ करेंगे क्योंकि नंबर्स बहुत बड़े हैं। किसके नंबर्स बड़े हैं? क्लास इंटरवल्स के बड़े हैं और फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी बड़ी है और ख़ास करके ये इसकी वजह से x की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, मिड वैल्यूज या तो क्लास मार्क्स। इसलिए हम स्टेप डेविएशन मेथड ऑलवेज प्रीफर स्टेप डेविएशन मेथड वेन एवर यू आर इन डाउट बिकॉज दैट इज द ईजिएस्ट एंड फास्टेस्ट। ओके नाउ सी आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू फाइंड UI इज x माइनस a अपॉन h। जैसे हायर क्लासेस में जाओगे ना तो ये जो क्लास लेंथ है ना, देखो ये क्लास लेंथ h है, इधर 50-50 का है और अज्यूम मीन मान लो कि मैं इधर बीच में से लेता हूँ, ये अज्यूम मीन लेता हूँ 225, a की वैल्यू 225। जैसे हायर क्लासेस में मैंने बोला ना कि जब 11-12 में जाओगे तो अज्यूम मीन को वो a लेते हैं, कैपिटल A, छोटे a की तरह, और h की जगह पे वो c लिखते हैं। ओके h की जगह पे c लिखते हैं, छोटे a की जगह पे कैपिटल A। इतना ही डिफरेंस होता है और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, फॉर्मूला सब वो ही होते हैं। ऑलराइट सो हमको फॉर्मूला तो ये यूज़ करना है, a प्लस सिग्मा FIUI अपॉन सिग्मा FI इनटू कैपिटल C लिखो, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, वो ज़्यादा इजी है लेकिन हम बुक के मुताबिक h लिखेंगे, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल। ओके अब a की वैल्यू हमने 225 लिया है, सिग्मा FIUI हमको निकालना है, सिग्मा FIUI 25 है और h की वैल्यू 50 है, इतना लिख दिया है। ओके नाउ लेट अस सी ये इसकी वैल्यू, तो ये जो 225 है ये हमने a लिया था, a के सामने 0 रख दो। ओके अब ये 1 और 2 आएगा, देखते हैं कि आता है कि नहीं। 125 माइनस 225 ओके अपॉन कितना है, अपॉन h की वैल्यू कितनी है 50 है, तो 125 माइनस 225 कितना होगा -100 होगा। ओके -100 को 50 से करेंगे तो कितना आएगा -2 आएगा, तो ये -2 और ये -1, ये 1 और ये 2 आ गया। ओके अब FIUI निकालते हैं। FIUI देखो कितना आसान हो जाता है, बहुत ही आसान, बेवकूफ़ को भी आ जाता है। अभी देखो 4 × 2 -8, 5 × 1 5, 12 × 0 2 × 1 2 2s are 4 और ये सिग्मा FIUI। माइनस को ऐड करो 13, इसको ऐड करो 6। ओके 6 and 7 13, तो -7 आएगा सिग्मा FIUI, तो इधर हम -7 लिख देते हैं। राइट सो 225 25 2s are 50, 2 × -7 -14। ओके -14 करेंगे तो 211 आ जाएगा। ओके सो देयरफॉर द आंसर इज 211। ओके सो यू जस्ट हैव टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल, ये बहुत फास्ट हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकता है। ऑलराइट नाउ लेट अस डू नंबर 7। Alright, number 7, to find out the concentration of SO2. Alright, concentration of SO2. Concentration of SO2. Alright, and frequency. ये frequency दिया है. Okay, concentration of SO2 in parts per million. 0.00 parts per million up to 0.004 parts per million. फिर 0.004 parts per million up to 0.008 parts per million. 0.04. I'll just write this again. Okay, 0.00 to 0.04. Okay, it's my mistake. 0.04 to 0.08. All right, and 0.08 to 0.12, then 0.12
to 0.16, 0.16 to 0.20, and 0.20 to 0.24. All right, and then of course the total. The frequency is given also. Frequency is 499,499,242, and sigma Fi will be 18, 22, 22 and 8, 22 and 8, 30. Okay, now you can see the numbers are such that it is better to use, the numbers are a little bit odd. कोई ऐसे सिचुएशन में अगेन हम अगर डायरेक्ट मेथड करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट इज़ बेटर टू यूज अ सिंपलर मेथड, एंड स्टेप डेविएशन मेथड इज ऑलवेज सिंपलर. ओके, सो हम x की वैल्यू निकालेंगे, क्लास मार्क. ओके, x की वैल्यू दोनों को डिवाइड करेंगे, 0.04 प्लस 0.04 को 2 से, हम 2 से डिवाइड करेंगे. देखो 0.00 प्लस 0.04. ओके, इसको ऐड करो 0.04, अब उसको 2 से डिवाइड करो 0.02. ओके, तो ये 0.02. ओके, अब इन दोनों के बीच में 0.06, इन दोनों के बीच में 0.10, इन दोनों के बीच में 0. देखो 1.2. अब इसमें यू हैव टू डू इस कितना ऐड करते हैं. यू सी h की वैल्यू कितनी है इधर, h की वैल्यू 0.04 है. ओके, तो 0.04 ऐड करते हो, 0.2, 0.4, 0.1. अब इसमें ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, 0.14. ओके, अब फिर से ऐड करो 0.18 आ जाएगा, और इसमें फिर से ऐड करो तो 0.22 आ जाएगा. ओके, 0.04 को ऐड करते जाओ h की वैल्यू. और a, अब हम a लेंगे. a को किसी को भी ले सकते हैं, इसमें a की ज़रूरत, यू कैन टेक, सपोज आई वांट टू टेक a आउट हियर, बीच में कहीं बीच में मैं a की वैल्यू लेता हूँ, 0.10 को लेता हूँ. ओके, नाउ उसके बाद अगर ui निकालना है, x माइनस a अपॉन h. ओके, तो इधर a के सामने 0 रख देते हैं, इधर -1 और ये -2, इधर 1, 2 और 3. ओके, नाउ fi ui, देखो कितना इजी हो जाता है. वंस यू अंडरस्टैंड इट बिकम्स वेरी क्विक. और इधर हम सिग्मा fi ui निकालेंगे. ओके, नाउ यू कैन सी दिस दैट 4 2s are -8, 9 1s are 9, 0 2 1s are 2, 4 2s are 8, 3 2s are 6. इसका टोटल 16 है, 9 and 8 17 है, -1, so this will be -1. Okay, so now x bar is equal to a. Always write the formula in statistics. Okay, because you, by writing the formula you will learn the formula also. Okay, so a की वैल्यू कितना लिया, 0.10. सिग्मा fi ui कितना आया, -1 आया. सिग्मा fi कितना था, 30 है, इंटू h कितना है, 0.04. ऑलराइट, सो नाउ 0.10 minus sign. Okay, -1 into this will be 0.04 upon 30, 0.10. Now you can see this